नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भाजपा जिला इकाई ने राज्य कांग्रेस सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों को बंद करने के फैसले के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। ऑपरेशन सिंदूर के सैनिकों की बहादुरी को याद करने के लिए कर्नाटक के कारवार में भारतीय लोक और नेशनल डिफेंस नामक संगठन द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा। पहले भी बहुत धमकियां मिली, अगर मैं गलत हूँ तो मैं माफी मांगूंगा और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नहीं मांगूंगा। कन्नड़ भाषा विवाद पर बोली कमिश्नर। मंगलुरु में भूस्खलन, मकान के नीचे फंसे एक ही परिवार के 5 लोग, एक महिला की डूब मौत। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, पाकिस्तान को अमित शाह की जोड़ी। पाकिस्तान में आया भूकंप, फिर काफी धरती बचा हड़कंप। अब समाचार विस्तार से। भाजपा जिला इकाई ने राज्य कांग्रेस सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों को बंद करने के फैसले के खिलाफ बीदर सिटी जिला अस्पताल ग्राउंड में विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवंत कुमार, ईश्वर सिंह ठाकुर, शशि ओसने, काउंसलर बाबू वाली, बीजेपी जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल के अलावा बीजेपी जिला इकाई के नेतागण उपस्थित थे। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 17 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ। ಇದು ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಗುಣವತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಔಷಧಿ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ। ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ 15,000 ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ। ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1541 ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 207 ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ। ಅದರಲ್ಲಿ 120 ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರೇ MSIL ಅವರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। MSIL ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ। ಆದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದ್ವೇಷ ಭಾವದಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರ ಒಂದು ನೀತಿ, ನಮಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಡವಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುಚ್ಚೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂಥ 761 ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು। ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಕೇವಲ 231 ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಡೈಕ್ಲೋಫೆನಿಕ್ ಆ್ಯಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಆ ಔಷಧಿ, ಇವತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ। ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ। ಆದರೂ ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಡವರೇನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ತಾವು ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ। ಅದು ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರು ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು। ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಗಿರಾಕಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಮಾಡಬೇಕು। ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರನೇ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಇದೆ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಚಾಳಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟು, ಮೊನ್ನೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸಭೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ। ಇಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುಚ್ಚಿದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಡವರಿಗಾಗಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು। ಈ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ। ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ 4 ರಿಂದ 5 ಜನ ಯುವಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಾಗ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಔಷಧಿ ಇವ್ರುಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಔಷಧಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 ವರ್ಷವಾದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಈ ರೀತಿಯಂಥ ಒಂದು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಶಾಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಪ್ಪು ಧ್ವಜವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು। ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಜನಾಂದೋಲನವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು बीदर दलित संगठन संघ ने पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे से अभद्रता करने वाले चलवादी नारायण स्वामी और मणिकांत राठौर के खिलाफ 4 जून को विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। इसलिए अंबादास गायकवाड़ ने अनुरोध किया है कि बीदर जिले के दलित संगठन कार्यकर्ता, खड़गे समर्थक, दलित मोर्चे, छात्र और युवा बड़ी संख्या में इसमें भाग लिए। इस अवसर पर श्रीपत राव दिने, शिव कुमार नीलिकाती, अनिल कुमार बेलदार, रमेश ठाकुर की, बाबूराव पासवान, रघुनाथ गायकवाड़, साई शिंदे, अविनाश दिने, पुट्टू दिने और अन्य उपस्थित।
केबी न्यूज के कैमरेमैन बाबूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ನಮೋ ಬುದ್ಧಾಯ ಜೈ ಭೀಮ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಏನು 31ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಏನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಂತಹ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಸೇರಿ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏನು ಅವಮಾನಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ 4ನೇ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. बीदर जिला के औराद तालुके में औराद रैत संपर्क केंद्र में आज वर्ष 2025-26 के लिए सोयाबीन, तुअर और अलग-अलग बीज वितरित किया गया। औराद तालुके के पूर्व पशुपालन मंत्री और औराद के विधायक प्रभु बी चौहान ने औराद रैत संपर्क केंद्र में बीज वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने पूजा की, पौधे को पानी डाला। इस अवसर पर पूर्व पशुपालन मंत्री और औराद तालुके के विधायक प्रभु बी चौहान ने औराद तालुके के एग्रीकल्चर अधिकारी को कहा, अच्छे से बीज वितरण करना चाहिए, कोई भी शिकायत नहीं आना चाहिए। और एग्रीकल्चर तालुका अधिकारी एडी अधिकारी को कड़े निर्देश दिए हैं कि किसानों को कोई दिक्कत न हो। इसी अवसर पर तालुका एग्रीकल्चर अधिकारी धूड़प्पा दोडी बानरोटे, कल्लप्पा देशमुख, शिवराज अलमाजे, पट्टन पंचायत सदस्य दयानंद जोड़े, तालुका के अधिकारियों, किसान, सभी कार्यकर्ता लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और आज से केबी न्यूज के संवाददाता आरिफ पाशा के रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ರೈತರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಕಮನಗರ ತಾಲೂಕು ಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಹೊರ ತಾಲೂಕು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೀಜ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೇಟ್ ಇದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, ರೈತರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಬೀಜ ಯಾವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಸೇವೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅನ್ನದಾತ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ರೈತರು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವೆಂದ ನಾನು ಯಾವ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿನಿಂದ ರೈತರು ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಚಿಟ್ಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಥರ ಬೀಜ ತಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೀಜ ತೊಗರಿ, ಸೋಯಾಬೀನು, ಹೆಸರು ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में कर्नाटक के शहर कारवार में भारतीय एयरफोर्स और नेशनल डिफेंस नामक संगठन द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा को अभूतपूर्व सफलता मिली है। यात्रा में हजारों लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज थामे हुए भाग लिया और देशभक्ति का परिचय दिया। सेवानिवृत्त और सेवारत सैनिकों द्वारा सैनिकों को सम्मानित किया गया। आज यात्रा की शुरुआत सांसद विश्वेश्वर हेगड़े, कागेरी पूर्व विधायक रूपालिया सिन्हा और गणमान्य लोगों द्वारा शहर के आला देवी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हुई। पूरी यात्रा के दौरान वंदे मातरम गीत बजाया गया। शहर के माला देवी मैदान से अम्बेडकर सर्कल तक निकले जुलूस में आधा किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज मुख्य आकर्षण रहा। जुलूस में देशभक्ति के नारे और सेना प्रमुखों के चित्र लगे वाहन शामिल। अम्बेडकर सर्कल के पास 40 से अधिक सेवानिवृत्त और वर्तमान में सेवारत सैनिकों को सम्मानित किया गया। मुझे पहले भी बहुत धमकियां मिली, अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगूंगा और अगर मैं गलत नहीं हूं तो नहीं मांगूंगा। ये कहना है तमिल एक्टर और मक्कड़ निधि मय्यम्मा एमएनएम पार्टी के अध्यक्ष कमल हसन का। कमल एक बार फिर से अपने कन्नड़ भाषा को लेकर दिए गए बयान को लेकर विवादों में है। तमिल अभिनेता कमल हसन ने कन्नड़ भाषा को लेकर दिए गए अपने कथित बयान पर अब चुप्पी तोड़ दी है। हाल ही में उनके एक बयान को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते कुछ कन्नड़ समर्थक संगठनों ने उनकी आने वाली फिल्म के बहिष्कार की धमकी दी है। कन्नड़ भाषा को लेकर दिए गए एक कथित बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए इन समूहों ने हासन से माफी की मांग की थी। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। लगातार भारी बारिश के कारण मंगलुरु में बाढ़ आ गई है और कुछ जगहों पर भूस्खलन हुआ है। ओटेपाड़व, डेडलाकाटे, उल्लाल में पंबा के पीछे पहाड़ी ढह गई और मिट्टी घरों पर गिर गई। एक ही परिवार के 5 सदस्य घरों के नीचे फंस गए और एक महिला की मौत हो गई है। बचाव कार्य जारी है। एक महिला की मौत हो गई है। मंगलुरु में भारी बारिश के कारण एक पहाड़ी के गिर जाने से बड़ा हादसा हुआ है। घर के नीचे दबे एक ही परिवार के 5 सदस्यों में से एक की मौत हो गई है। पहाड़ी कंटप्पा पुजारी के घर पर गिरी और कंटप्पा पुजारी की पत्नी प्रेमा पुजारी की मौके पर ही। घर के नीचे एक महिला और 2 बच्चे फंसे हुए, तीनों को निकालने के लिए बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंच गए और बचाव कार्य कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार और राज्यपाल के बीच मुस्लिम आरक्षण को लेकर फिर से टकराव की स्थिति बन गई है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट संशोधन विधेयक 2025 को दूसरी बार लौटा दिया। इस बिल में मुस्लिम समुदाय को सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स में 4% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। राज्यपाल ने इस बार साफ कहा है कि यह बिल सीधे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा जाए। इस बिल के तहत मुस्लिम समुदाय को 1 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने का प्रावधान है। इसके अलावा SC, ST और OBC कैटेगरी 1 और 2A को भी सरकारी टेंडरों में आरक्षण देने की बात कही गई है। यह विधेयक मार्च 2025 में राज्य विधानसभा से पास हुआ था। राज्य सरकार इस मामले में पहले कोर्ट जाने का मन बना रही थी, लेकिन संविधान विशेषज्ञों की सलाह के बाद सरकार ने कानूनी रास्ता छोड़ने का फैसला किया। विशेषज्ञों ने कहा कि कोर्ट में जाने से मामला और उलझ सकता है, इसलिए राष्ट्रपति के पास भेजना ही बेहतर विकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट पर 14 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात की। वैभव ने पीएम के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। वह कम उम्र में दमदार प्रदर्शन की वजह से चर्चा में आए थे। उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग की टीम राजस्थान रॉयल्स ने मेगा एक्शन में खरीदा था। वैभव ने IPL 2025 में दमदार प्रदर्शन करते हुए 35 गेंदों में शतक जड़ दिया। उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ यहाँ पारी खेली थी। प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर थे। उन्होंने शुक्रवार को काराकाटा में जनता को संबोधित किया। इसके बाद पटना एयरपोर्ट से रवाना हुआ। इस दौरान पीएम ने बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव से मुलाकात की। इस दौरान उनके माता-पिता भी मौजूद थे। पीएम ने वैभव से मुलाकात के बाद एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर की। उन्होंने लिखा कि पटना एयरपोर्ट पर क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी और उनके परिवार से मुलाकात हुई। वैभव को भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। वैभव ने IPL 2025 के दौरान दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 7 मैचों में 252 रन बनाया। वैभव ने इस सीजन में 1 शतक और 1 अर्धशतक भी लगाया। उनका हाल ही में भारत की अंडर 19 टीमें भी सिलेक्शन हुआ। वैभव कम उम्र में ही बड़े धमाके कर चुके हैं। वे अंडर 19 एशियाई कप 2024-25 में भी अच्छा परफॉर्म किया था। सूर्यवंशी डोमेस्टिक क्रिकेट में बिहार के लिए खेलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पुंछ में सीमा पार से गोलीबारी में प्रभावित लोगों से मुलाकात की और पीड़ित परिवार को रोजगार नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्होंने पाकिस्तान से दो कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अमित शाह ने कहा कि किसी भी तरह का हमला भारत सहन नहीं करेगा। इसका सटीक और इससे भी बुलंद जवाब दिया जाए। सेना ने ये कर दिखाया। पुंछ में कई लोगों के घरों को नुकसान हुआ है, लोगों के बिजनेस को नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर सरकार ने उन लोगों की मदद की है। भारत सरकार भी उनके लिए एक पैकेज लाएगी।
अमित शाह ने पूंछ के पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं जताते हुए कहा कि पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों और धार्मिक स्थानों पर हमला किया। जम्मू कश्मीर सरकार ने नए हताहत नागरिकों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का कार्यक्रम आयोजित किया है। हालांकि मुआवजा और सरकारी नौकरी से उनके जीवन में हुए नुकसान की पूर्ति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि सरकार और देश की भावनाएं आपके साथ जुड़ी। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक भूकंप का झटका महसूस किया गया है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक झटका शुक्रवार 30 मई को दोपहर 1:37 में महसूस किया गया था। इस वजह से हड़कंप मच गया। हालांकि फिलहाल इसकी वजह से नुकसान से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी सामने नहीं आई है। पाकिस्तान में इस हफ्ते ये चौथी बार है जब धरती कांपी है। इससे पहले कल गुरुवार को ही 4.4 तीव्रता का भूकंप आया था। वहीं मंगलवार 27 मई को शाम 7:30 पर पाकिस्तान के फैसलाबाद डिवीजन में रिक्टर पैमाने पर 4.2 तीव्रता का भूकंप आया था। पिछले महीने भी देश में कई भूकंप आए जो एक के बाद एक आए। मई महीने में देश में आया यह चौथा भूकंप है। इन घटनाओं के दौरान किसी तरह के नुकसान या चोट की खबर नहीं है। अब फिलहाल देखो छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। सरकार की तरफ से पिछले दिनों जाति जनगणना के ऐलान के बाद से ही इस पर चर्चाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी जाति आधारित जनगणना को एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम बताया। नई दिल्ली में गुरुवार को भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी दशक की जनगणना में जातिगत आंकड़े जुटाने का निर्णय सामाजिक न्याय और जवाबदेही की दिशा में बड़ा गेम चेंजर का। असल में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 1931 की जातिगत जनगणना के बाद यह पहला मौका होगा जब जाति के आधार पर व्यापक आंकड़े जुटाए जाएंगे। उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव शेयर करते हुए यह कहा कि मैंने भी कई बार अपनी जाति जानने के लिए 1931 की जनगणना को देखा है। इससे पता चलता है कि ऐसी जानकारी कितनी अहम हो सकती है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस पर हो रही बहस पर कहा कि जातिगत आंकड़े विभाजनकारी नहीं बल्कि एकीकरण के उपकरण बन सकते हैं। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि यह अपने शरीर की MRI कराने जैसा है, तभी आपको असली तस्वीर मिलती है। उन्होंने कहा कि ऐसे डेटा से संविधान में निहित समानता जैसे संकल्पों को व्यवहारिक नीतियों में बदला जा सकता है। कांग्रेस और पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के बीच बढ़ते टेंशन को लेकर पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सफाई दी और कहा है कि उनके नेताओं के बीच कोई कटुता नहीं है। हालांकि रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा है कि उन्होंने 2016 में पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक होने के बारे में जो बयान दिया वह गलत है। इस पर शशि थरूर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जो लोग उनकी बातों को गलत तरीके से समझ रहे हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि वह केवल आतंकी हमलों के जवाब में की गई कार्रवाइयों की बात कर रहे थे, न कि अतीत के युद्धों की। मीडिया को संबोधित करते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में शशि थरूर द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में दिए गए हालिया बयान तथ्यात्मक रूप से गलत था और कांग्रेस ने केवल यह बताकर रिकॉर्ड को सही किया है कि आतंकवादियों को करारा जवाब देने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकवादियों के अन्य ठिकानों पर नियमित रूप से हमले किए गए। आगे में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भाजपा जिला इकाई ने राज्य कांग्रेस सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों को बंद करने के फैसले के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। ऑपरेशन सिंदूर के सैनिकों की बहादुरी को याद करने के लिए कर्नाटक के कारवार में भारतीय लोक और नेशनल डिफेंस नामक संगठन द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा। पहले भी बहुत धमकियां मिली, अगर मैं गलत हूँ तो मैं माफी मांगूंगा और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नहीं मांगूंगा। कन्नड़ भाषा पर बोली कमेंट। मंगलुरु में भूस्खलन, मकान के नीचे फंसे एक ही परिवार के 5 लोग, एक महिला की भी मौत। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, पाकिस्तान को अमित शाह की जोड़ी। पाकिस्तान में आया भूकंप, फिर कांपी धरती, बचा हड़कंप। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KV News 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।